Good afternoon, everyone. Yesterday we completed PGBP up to the portion where we studied that incomes which form part of business, which incomes we will take while considering gains or profits from business. And one concept was of depreciation, which I said that the depreciation which is computed as per Companies Act, that depreciation will be deducted from income tax because that depreciation is not allowed under income tax, and the depreciation we will take the depreciation which is computed as per income tax. So we have to deduct the depreciation which is provided under accounts, and the process of calculating depreciation for income tax and the process of calculating depreciation under your financial accounts or under Companies Act is totally different. The concept of assets in income tax is also different. So there were 10 points including the different types of income which form part of calculating profits while we under this chapter under income tax. And chargeability. Chargeability is income which is chargeable. This point I discussed that which chargeable under profits and gains. PGBP में जो इनकम चार्जेबल होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो इनकम आता है वो इनकम shall be subject to computed in accordance with the method of accounting. जो method of accounting है उसके हिसाब से ही PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का कैलकुलेशन होगा, वेदर कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस. बट 43B एक सेक्शन है, 43B बोल के एक सेक्शन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट जिसमें आपको कुछ कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होता है और वो एक्सपेंसेस अलाउ होता है ओनली ऑन कैश बेसिस. मतलब अगर आप कैश में वो पेमेंट कर चुके हैं तो ही आपको वो एक्सपेंसेस मिलेगा, else you will not get the deduction of that expense. वो कैश बेसिस में ही होता है, मतलब you have to pay it in cash. Second point is negative income. Negative income can be negative. This we saw in self-occupied property also. Self-occupied house property में हमने पढ़े थे कि इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट से वो वाला पोर्शन नेगेटिव आता है. इन द सेम वे दैट इज रिगार्डेड एज लॉस. उसको अपने लॉस बोल के ट्रीट करते हैं अंडर इनकम टैक्स और वो टोटल इनकम से माइनस होता है. Notional profit. Now you cannot take notional profit of your business. Notional profit means suppose a proprietor, sole proprietorship fund है, फॉर्म है, उस फर्म का जो ओनर है वो 10,000 रुपीज का सामान अपना शॉप से ही विड्रू 10,000 रुपीज का सामान एट द कॉस्ट ऑफ 12,000. वो उसमें 2,000 का जो प्रॉफिट कमा रहा है, 10,000 का सामान लेने के लिए वो अपना शॉप में 12,000 रुपया रखता है, तो वो 2,000 का जो प्रॉफिट है दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि यू कैन नॉट अर्न डूइंग बिजनेस विद योरसेल्फ. अपने आप के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता, अपना काम के लिए यूज कर रहा है, निकाल रहा है अगर सामान, तो वेदर ही डिपॉजिट वो उस अकाउंट में 2,000 की वो उस सामान को 15,000 में भी खुद बेच सकता था. So it doesn't mean कि you inflate your profit like this. So you cannot do business with yourself. इसीलिए notional business, notional profit. This is not actual profit. Notional profit is not taken into consideration. Fourth point है आपका in the same way anticipated profit or loss. Suppose कोई प्रॉफिट यू आर थिंकिंग दैट यू विल हैव दिस प्रॉफिट, फ्यूचर में ये ट्रांजैक्शन होगा और आपको इतना बिजनेस आएगा या इतना में आप इसको सेल करके इतना प्रॉफिट आपके पास होगा, तो यू कैन नॉट टेक दैट आल्सो. एंटिसिपेटेड प्रॉफिट कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस. अभी अपने एंटिसिपेटेड जब तक है तब तक उसको नहीं ले सकते. जब यू विल एक्चुअली रिसीव दैट प्रॉफिट और यू विल एक्चुअली इनकर दैट लॉस, तभी आप उसको पार्ट बना सकते हैं अपना कैलकुलेशन का. लीगैलिटी ऑफ बिजनेस, दिस आई सेड यस्टरडे, इनकम टैक्स लीगैलिटी नहीं देखता कि वेदर द बिजनेस और वेदर द प्रॉफिट्स यू आर अर्निंग इज फ्रॉम लीगल सोर्स और इलीगल सोर्स, क्योंकि दैट इज नॉट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स उसको नहीं देखता,
वो उसका रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है, रिस्पेक्टिव जो एक्ट है, दैट एक्ट टेक्स केयर ऑफ इट। इनकम टैक्स में आपको सिर्फ इनकम से फर्क पड़ता है, इट माइट बी फ्रॉम लीगल और इलीगल एनी सोर्स। Compilation of income of all business or profession. Suppose someone is a businessman, he is having business at 2 or 3 places. तो वो 2-3 जितना भी जगह उसका बिजनेस है, वो सारा बिजनेस से whatever he is earning, वो टोटल एक ही रिटर्न में, मतलब एक ही जगह कैलकुलेट करके प्रॉफिट्स दिखाएगा, अलग अलग बिजनेस का नहीं दिखाएगा कि इस बिजनेस के लिए हम ये पीसीबीपी का स्टेटमेंट बनाए, फॉर अदर बिजनेस आई एम मेकिंग वन मोर पीसीबीपी स्टेटमेंट। नो, हाउ मेनी बिजनेसेस यू मे हैव, बट यू विल show the accumulated statement of PGBP, accumulated statement आपको देना है। And the business or profession जो आपका है, that should be carried on in the previous year। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 साल पहले को काम करते थे और उसका कंप्यूटेशन आज आप कंप्यूट कर रहे हैं। It cannot happen because what you need to do is you have to have that business in previous year। previous year का business ही इस year में compute होगा। So you should have run that business in previous year। But there is one exception in this। Suppose आपका कोई business last year बंद हो गया, पूरा साल नहीं चला, उससे पहले वो business बंद हो गया, but उस business में कुछ due था, so you had some receivables, some amount was due to be received। Now what happened? In this year you are receiving that business। अगर वो business आप वो पैसा आप इस साल receive कर रहे हैं, तो what you are doing, आपका वो रिसीवेबल जो इस साल है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बिजनेस बंद कर दिए तो अब वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा या उस पर टैक्स नहीं देना है। यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट, तो उसको अपने इस साल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन दिखाएंगे। बट दैट इज ओनली फॉर द केस वेयर बिजनेस वाज टर्मिनेटेड एंड यू रिसीव्ड द रिसीवेबल्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लास्ट में बिजनेस किए ही नहीं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 1 साल पुराना बिजनेस था, but उसके लिए you are computing computation in this financial year, that cannot happen। but exception is if you are receiving any due amount, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, you have to show that under this year's computation, क्योंकि आपको उस पर टैक्स पे करना है, तो आपको इस साल का बिजनेस कंप्यूटेशन में वो रिसीविंग अमाउंट दिखाना पड़ेगा। See, but there are अच्छा, वो बिजनेसेस डिटेल में वी विल डिस्कस लेटर सेक्शन 41 में जब वो डिटेल में आएगा। बट यहाँ पे क्या क्या है, वन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी ईयर एंड सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस, तो वो इस साल आएगा। कोई अमाउंट था जो पहले अलाउड एज डिडक्शन एंड वो अमाउंट आप तब मिला नहीं था, यू आर रिकवरिंग दैट अमाउंट। पहले आपको वो अमाउंट अलाउ कर दिया था एज रिडक्शन, बट फाइनल बाद में वो अलाउ आपको अमाउंट मिलता है कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यू हैव टू पे टैक्स एंड यू हैव टू शो दैट अंडर बिजनेस प्रोफेशन। बैलेंसिंग चार्ज, पावर सेक्टर यूनिट में बैलेंसिंग चार्ज, दिस वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर, मतलब इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है ऐसा कोई एसेट इफ यू आर सेलिंग। बैड डेट रिकवरी, पहले आपको बैड डेट था, सपोज बैड डेट मतलब यू विल नॉट गेट मनी, वो डेटर्स का उतना पोर्शन आपको नहीं मिल रहा है, दैट इज बैड डेट। बैड डेट को अपना पीएल में हम अपना खर्चा के हिसाब से दिखाते हैं, एंड एज इट इज रिलेटेड टू बिजनेस कि आपका वो बैड डेट है, आप उसको नहीं रिकवर कर सकते, तो इनकम टैक्स में भी उसका डिडक्शन अलाउ है, मतलब वो अलाउएबल खर्चा है, दैट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम पीएल। मतलब अलाउएबल खर्चा मतलब आपका यस्टरडे डिस्कस्ड कि सपोज आपको दिया हुआ है कि पीएल का बैलेंस प्रॉफिट इज 8 लाख रुपीज, उसके बाद आपको क्या दे देगा, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स दे देगा कि डेप्रिसिएशन मान लीजिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से 1 लाख है और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन इज 1,50,000।
सपोज दिस इज द केस, बैड डेट्स कितना था, 5000 का बैड डेट्स है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख का इफेक्ट इस प्रॉफिट में दिया हुआ है। बैड डेट्स 5000 का भी इफेक्ट इस प्रॉफिट में दिया हुआ है, क्योंकि ये वो आइटम्स है जो आपका इनकम बैलेंस शीट में ऑलरेडी माइनस हो चुका है प्रॉफिट निकलने के टाइम, क्योंकि रेवेन्यू में से ये सब खर्चा माइनस होके आपका प्रॉफिट आता है, मतलब ये सब एडजस्टमेंट हो चुका है प्रॉफिट में। सो यू हैव टू सी विच इज अलाउड एज पर इनकम टैक्स एंड विच इज नॉट अलाउड, विच एक्सपेंस आपका अलाउेबल एक्सपेंस है और कौन सा अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। ये कंपनीज एक्ट अलाउेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,00,000 रुपया यू हैव टू ऐड इट बैक, ये वापस ऐड बैक करके आपको ओरिजिनल प्रॉफिट लेके आना है बिफोर दिस एक्सपेंस। मतलब 9 लाख रुपीज इज योर ओरिजिनल प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन। इसीलिए हम पीजीबीपी का जब सम करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स। देन व्हाट इज अलाउड एज पर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन अंडर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट का जो 1,50,000 रुपया है, ये डेप्रिसिएशन मेरे को मिलेगा, तो हम ये अलाउ करते हैं एंड योर इनकम बिकम 7,550,000। ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगा, बिकॉज ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है इस प्रॉफिट में। ये 8 लाख का फिगर जब आया है तो ये 5,000 उसमें से माइनस होके आया है। सपोज दिस बैड डेट अलाउ नहीं होता, मतलब ये अगर इनकम टैक्स बोलता हम बैड डेट अलाउ नहीं करते, तो आपको एज एक्सपेंस ये 5,000 भी इसमें ऐड कर देना पड़ता। इट इज अ टाइप ऑफ रिकंसिलिएशन कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। जो अलाउड नहीं है उसको वापस ऐड कर दो और जो अलाउड है वो माइनस कर दो। बट सपोज यू हैव ऑलरेडी डिडक्टेड समथिंग, जैसे बैड डेट ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो उसको वापस से माइनस नहीं करना है प्रॉफिट से। तो ये क्या हुआ, ये बैड डेट में ये जो क्या बोलता है 8 लाख रुपीज है, दिस 8 लाख में इज 5,000 इज अलाउड, बिकॉज ये आपका बैड डेट हो गया। लेकिन सपोज बाद में आपको ये 5,000 रुपीज मिला है, अब जब आपको ये 5,000 रुपीज मिला है, एट दैट टाइम यू वर नॉट इनटू दिस बिजनेस, आप तो इस बिजनेस में थे ही नहीं क्योंकि आप बिजनेस टर्मिनेट कर चुके हैं। तो बट लेकिन उस 5,000 को आपको बिजनेस प्रोफेशन में दिखाना पड़ेगा and you have to pay tax. So this is the meaning of this bad debt recovery, which was earlier allowed as deduction. And amount withdrawn from a reserve. If you had created any reserve under this section, उसमें से amount withdrawn. तो ये जो 5 point है, this we will later discuss under section 41. अच्छा, now is income not taxable under the head profits and gains of business profession. कौन सा इनकम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है? तो अभी तक आप लोग पढ़ा है एनीथिंग यू आर अर्निंग फ्रॉम सैलरी वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी से आप जो अर्न कर रहे हैं वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में लेकिन क्या था, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी विच इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, तब वो अपने क्या करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे। बट सपोज यू हैव गिवन ऑन रेंट हाउस प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाके पीजीबीपी में आएगा। जैसे यहाँ पे सी सेक्शन 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन दो द एसएससी is engaged in the business of letting out of house properties. अब सपोज एसएससी का बिजनेस ही ऐसा है, एसएससी का बिजनेस ही ऐसा है कि वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, उसके पास बहुत सारा हाउस प्रॉपर्टी है, वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं। देन ऑल्सो वो बिजनेस का इनकम, दो ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, फिर भी उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा, नॉट अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ही इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और उसको रेंट मिल रहा है। एंड दिस वाज द कंडीशन कि वो
हाउस प्रॉपर्टी में जब अपने पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कंडीशन कि आप ओनर होना चाहिए, एसएससी शुड बी द ओनर, ही शुड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए वो लेट आउट करे, वो अपना बिजनेस पर्पस के लिए यूज ना करे, वो लेट आउट करे उसको, एंड ही वाज अर्निंग फ्रॉम इट, वो उससे पैसा कमा रहा है, रेंट अर्न कर रहा है, तो स्टिल दो ही इज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, लेकिन वो स्टिल क्या करेगा, वो लेट आउट नहीं, वो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। So this is one. However, see, when letting of house property, अगर आप हाउस को लेट आउट कर रहे हैं फॉर सपोर्टिंग द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, तब वो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। दिस वाज देयर इन हाउस प्रॉपर्टी आल्सो। अगर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए हम घर लेट आउट कर रहे हैं तो वो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। बट इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, तब वो इनकम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं जाएगा, दो दैट इज योर बिजनेस, इनकम विल गो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज रेसेस, डिविडेंड्स ऑन शेयर, आपको अगर लॉटरी रेस ये सब में से यू आर अर्निंग समथिंग, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे केबीसी, केबीसी में जो कंटेस्टेंट जीतता है वो पैसा उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, बिकॉज इट इज टाइप ऑफ अ लॉटरी, नॉट अ लॉटरी, इट इज टाइप ऑफ गेम, एक गेम है, उसमें से वो सब पैसा, जैसे हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग में अगर कोई प्राइज जीत के आता है, लॉटरी में अगर कोई प्राइज जीतता है, तो वो उसका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, नॉट अंडर बिजनेस। अब कल एक हम लोग पढ़े थे स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन जो आपको पता नहीं है व्हाट विल बी द आउटकम, तो यू कैन आल्सो से कि लॉटरी में भी तो आपको पता नहीं है व्हाट विल बी द आउटकम, लेकिन स्टिल स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन से व्हाट यू आर अर्निंग, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ शेयर्स होगा, इफ यू आर परचेजिंग शेयर्स, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो शेयर्स का ट्रांजैक्शन या ऑप्शंस, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस का ट्रांजैक्शंस, उसमें से जो इफ यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ दैट, ऐसा नहीं है कि हम दो शेयर कोई कंपनी का खरीद लिए और जब उसका पैसा हाई हुआ तो हम उसको बेच दिए, दैट इज नॉट बिजनेस प्रोफेशन, उसका वो कैपिटल गेन्स में चला जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट माय बिजनेस। बट इफ आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग शेयर्स, हम शेयर्स में ट्रेड करने का बिजनेस में है, हम दिन रात शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, मेरा यही काम है, आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ दैट, तब मेरा इनकम बिजनेस प्रोफेशन में ही आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन एंड लॉटरीज या गेम्स, ये सब जो गेम्स है, हॉर्स रेस, लॉटरीज, ये सब भी यू डोंट नो द आउटकम, व्हाट विल बी द आउटकम, लेकिन जो अर्निंग मनी है दैट गोज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट अंडर बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन स्पेक्यूलेशन बिजनेस या स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस जो होता है उसमें उसका अर्निंग इज अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, वो बिजनेस प्रोफेशन में रहता है। सपोज लॉटरी वाला जो लॉटरी टिकट्स बेच रहा है, द ओनर या फिर द वन हु इज इनटू द बिजनेस, जो लॉटरी खरीद रहा है वो जो लॉटरी जीता वो पैसा बिजनेस प्रोफेशन में गया, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है लॉटरी टिकट बेच रहा है वो अगर उसका कैसा होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। मान लीजिए उसका कुछ लॉटरी टिकट्स नहीं बिका, अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स रह गया, तो वो अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स वो ओनर क्या किया, अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स में कोई एक लॉटरी टिकट खरीद लिया वो खुद, एंड ही वोन लॉटरी, उसमें उसको लॉटरी मिला, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं जाएगा, वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। Now see, these are so minute things. लॉटरी खरीद के, आज हम लॉटरी टिकट खरीद के इफ आई वोन अ प्राइज, तो व्हेन आई विल कंप्यूट माय इनकम, अपने को मेरे को वो लॉटरी से जीता हुआ प्राइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना पड़ेगा। बट लॉटरी टिकट वाला ओनर जो ये काम करता है, बेचता है लॉटरी टिकट्स, where an assessee deals in lottery tickets and some of the lottery tickets remained unsold, उसके पास कुछ लॉटरी टिकट्स बच गया है, वो बिका नहीं,
एनी विनिंग फ्रॉम सच अनसोल्ड लॉटरी टिकट, मान लो उसमें से कोई लॉटरी टिकट वो खुद जीत जाता है, जो ओनर है ही विंस, तब क्या होगा, वो पैसा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। दैट मनी डज नॉट गो इनटू अदर सोर्सेस, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं जाएगा। देन एग्जेम्प्टेड इनकम, कुछ कुछ इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता। कौन सा इनकम है? सेक्शन 10, जब हम सैलरी बढ़ाना था उसमें जो आई सेड सेक्शन 10 एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज आल्सो अंडर सेक्शन 10 जिस पे टैक्स नहीं लगता। तो ये सब पे तो टैक्स ही नहीं लगता, तो अगर आपका एग्रीकल्चरल बिजनेस है तो भी आपको ये एग्जेम्प्ट पोर्शन में है, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा अंडर बिजनेस प्रोफेशन। पॉलिटिकल पार्टीज का जो अर्निंग होता है वो एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 11-12 जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर रिलीजियस ट्रस्ट, जो चैरिटी के लिए काम कर रहा है। चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो जो एग्जेम्प्ट है वो तो एग्जेम्प्ट है ही, वो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा। सम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, रूट परमिट, एनीवन इज हैविंग द आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट परमिट? रूट परमिट क्या होता है? Route permit is a permit which you take while if you are having heavy vehicles, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप रास्ते पे अपना व्हीकल यूज करना चाहते हैं तो आपको उसका रूट परमिट लेना पड़ता है। सपोज यू आर सेलिंग रूट परमिट टू समवन, उसमें जो प्रॉफिट हुआ दैट प्रॉफिट डज नॉट गो अंडर पीजीबीपी, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन्स में जाता है। आप प्रॉफिट कमाओ, रूट परमिट बेच के आपको प्रॉफिट हुआ है, बट वो प्रॉफिट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीजीबीपी, वो कैपिटल गेन्स पे जाएगा, नॉट अंडर पीजीबीपी। सो सेलिंग ऑफ रूट परमिट एंड इफ यू आर अर्निंग एनी प्रॉफिट तो वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा। अब these are the incomes which does not form part of PGBP. So now we will do expenses which form part of PGBP. कौन सा expense है जो PGBP का part बनता है? Capital versus revenue expenditure. Capital expenditure is not allowed under PGBP. PGBP में capital expenditure not allowed unless mentioned. सपोज कोई सेक्शन में या कोई रूल में लिखा हुआ है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, तभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होता है, नहीं तो नहीं होता है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर जो ह्यूज अमाउंट का होता है। तो अगर सब कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करने लग जाते हैं तो आपका जो इनकम है सब उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने से योर इनकम विल बी अ वेरी लेस अमाउंट, बिकॉज a huge part is there in capital expenditure. तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ ही नहीं करते ताकि no one can manipulate the योर इनकम या प्रॉफिट को मैनिपुलेट नहीं कर सके, क्योंकि उसमें से एक्सपेंस माइनस कर करके उसको एकदम कम नहीं कर सके, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, all revenue expenditure are allowed unless mentioned। अब अगर कहीं लिखा हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, ये पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। So if somewhere it is mentioned specifically तो उसका वैसा ट्रीटमेंट होगा, बट जनरल ट्रीटमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी अलाउड नहीं है unless mentioned, और revenue expenditure हमेशा allowed है unless mentioned it is not allowed. Next is expenditure of non-assessable business. PGBP में आप हमेशा याद रखना, आप उसी इनकम के अगेंस्ट का खर्चा ले सकते हैं एज डिडक्शन जो इनकम टैक्सेबल है। जो इनकम टैक्सेबल नहीं है उसके अगेंस्ट किया हुआ कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। जैसे सपोज यू हैव अर्न समथिंग ऑन शेयर्स, शेयर्स बेच के आपको कुछ इनकम हुआ है,
तो उसके अगेंस्ट का खर्चा क्या होता है, डीमैट चार्जेस। आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं शेयर्स के, उसके लिए यू हैव टू पे चार्जेस। तो डीमैट चार्जेस उसमें से अलाउ होता है। नॉट ओनली इन कैपिटल गेन बिजनेस प्रोफेशन, इंटरेस्ट। आपका बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है एंड यू आर हैविंग सम मनी, यू आर रिसीविंग एन इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, वो इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। अप टू 10,000 इट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट 12,000 15,000 का है तो वो 12 2,000 5,000 जो एक्स्ट्रा ऑफ 10,000 इज टैक्सेबल। तो उसके अगेंस्ट आप अपना बैंक में बैंक चार्जेस भी पे करते हैं। तो वो बैंक चार्जेस को आप एज डिडक्शन ले सकते हैं, एक्सपेंस अलाउ होगा आपका। बट सपोज यू आर हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के अगेंस्ट आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे सपोज यू आर बाइंग सीड्स और यू आर बाइंग फर्टिलाइजर्स और you are buying something which is required to upgrade your agricultural activity, वो खर्चा अलाउ नहीं होगा because that expense, that income is not taxable under income tax act. एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए उसके अगेंस्ट किया गया कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। इसीलिए नॉन असेसेबल बिजनेस, मतलब जिस बिजनेस को हम असेस नहीं कर सकते अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उस बिजनेस का जो खर्चा है वो अलाउ नहीं होगा। एंड एनी एक्सपेंडिचर ऑफ अ नॉन असेसेबल बिजनेस इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, वो अलाउ नहीं होगा। सी टॉपिक यहाँ पे था एक्सपेंडिचर्स अलाउड एज रिडक्शन, बट आपको दोनों ही चीज बता रहा है इसमें, कैपिटल रेवेन्यू दोनों में आपको दोनों चीज बताया, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं। तो डोंट गो अंडर दिस टॉपिक कि यहाँ पे अलाउड एज रिडक्शन है, इसका मतलब नीचे जितना भी लिखा हुआ है सब अलाउड एज रिडक्शन है। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे लिखा था अलाउड एज रिडक्शन बट अंदर सबका बाइफरकेशन दिया है कि कब अलाउड है और कब अलाउड नहीं है। एक्सपेंडिचर मस्ट रिलेट टू द बिजनेस ऑफ एसएससी, मतलब आपका पर्सनल खर्चा अलाउ नहीं होता है कभी भी। आपका बिजनेस है, बिजनेस के रिलेटेड आप कोई भी खर्चा कीजिए वो अलाउड है। जैसे इफ यू आर हैविंग बिजनेस, आप बिजनेस का रेवेन्यू है, उसके अगेंस्ट आपने अपना फर्नीचर चेंज करवाया, जो पुराना फर्नीचर था वो हटा के नया फर्नीचर करवाया। नाउ व्हाट हैपेंस, दोस न्यू फर्नीचर का खर्चा, ये नहीं कि आप पीएल में डेबिट कर देंगे और इनकम टैक्स में वो अलाउ हो जाएगा, नो, बिकॉज दोज आर योर पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स। आपका बिजनेस का खर्चा सिर्फ अलाउ होगा, जैसे पेइंग सैलरी, सैलरी आप अपना बिजनेस के लिए दे रहे हैं, तो द बेनिफिट इज एंजॉयड बाय एम्प्लॉयर्स, वो सैलरी का बेनिफिट एम्प्लॉयज को हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है उस पैसे से। But as it is your business expenditure which is related to your business, तो आपको अलाउ होगा। So any expense which is related to your business वही अलाउ होगा, जो नहीं रिलेटेड है वो अलाउ नहीं होगा। मतलब आप घर का खर्चा टैक्स में डिडक्ट नहीं ले सकते कि हाँ हम ज्यादा खर्चा कर लेते घर पे, हमको टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। एंटिसिपेटेड लॉस, ऊपर अभी पढ़ा था कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस नहीं अलाउ होता है। तो यहाँ पे है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सी बैड डेट्स आर अलाउड अंडर इनकम टैक्स, क्योंकि बैड डेट्स आपको पता है, आपको 5,000 रुपया का बैड डेट हो चुका है, नाउ यू विल नॉट रिसीव दैट अमाउंट। बट व्हेन वी आर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो अलाउ नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट नो वेदर दिस इज योर एक्चुअल बैड डेट। सपोज आप तो प्रोविजन अगर अलाउ होता, आप 50,000 1 लाख का दिखा देते कि हाँ मेरा इतना बैड डेट्स होने वाला है, एंड यू वुड हैव टेकन डिडक्शन व्हिच वुड हैव डिक्रीज्ड योर इनकम। तो इसीलिए वो अलाउ नहीं किया है, प्रोविजन को अलाउ नहीं किया है, जो एक्चुअल है वही अलाउ किया है। जब आपका बैड डेट होगा तब आप 1 लाख का डिडक्शन ले लीजिएगा, बट यू कैन नॉट शो दैट आई विल हैव अ बैड डेट ऑफ 1 लाख। प्रोविजंस आर नॉट अलाउड। नोशनल एक्सपेंडिचर, इन द सेम वे जो नोशनल प्रॉफिट्स था वहां पे कि इफ यू आर विथड्रॉइंग 10,000 रुपीज का सामान फ्रॉम योर शॉप एंड यू आर फॉर दैट, उसका वैल्यूएशन आप 12,000 रुपया लगाते हैं, 2,000 आप अपना प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेड विद योरसेल्फ।
इन द सेम वे कोई एक्सपेंस भी, पर्सनल एक्सपेंस यू कैन नॉट डू, नोशनल लॉस भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज लॉस हो या प्रॉफिट यू कैन नॉट ट्रेड विथ योरसेल्फ. And the onus of proof, ये आप suppose you have taken a deduction of some expenses which is under question under IT Act. जब आप कंप्यूटेशन करते हैं और अपना रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर है who is assessing your returns, उसको लगता है कि ये जो डिडक्शन आप लिए हैं, that deduction you should not have taken as deduction, ये अलाउड नहीं होगा इनकम टैक्स में. तो वो आपके यहाँ लेटर भिजवाएगा कि why you have taken this deduction, you have to prove him कि आप क्यों लिए हैं. ये एसएससी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. If ever questioned, he has to prove कि why he took this expense as deduction. उस टाइम पे यू कैन नॉट से कि हमको नहीं पता कैसे ले लिए, क्या ले लिए. नो, यू हैव टू प्रूव इट. अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो वो सारा खर्चा ऐड बैक हो जाएगा आपका प्रॉफिट में, और उसके बाद जो टैक्स आएगा विद पेनल्टी यू हैव टू पे दैट अमाउंट. पेनल्टी, इंटरेस्ट सब उस पे लगेगा एंड यू हैव टू पे दैट अमाउंट. सो यू हैव टू हैव दिस प्रूफ. आपके पास प्रूफ हमेशा रहना चाहिए कि आप इस खर्चा को एक्सपेंडिचर एज डिडक्शन क्यों लिए हैं, that it relates to your business. Okay. PGBP में section 30 to 43B, 43DB, sorry, section 30 से 43DB तक आपका पूरा प्रोसेस एंड पूरा आइटम्स दिया हुआ है कि कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, कैसे अलाउ होगा, नहीं होगा, एवरीथिंग इज रिटन. So it starts from 30 to 43DB. पहला सेक्शन 30 is rent, rates, repairs and insurance for building. Rent, rates, taxes, repairs, insurance, ये सब अगर related to your business है for any premises, मतलब और ये premises you are using for your business or profession, तो ये सब कुछ खर्चा अलाउ होता है. तो रेंट जो आप PL में दिखाते हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्लीज इमेजिन योर PL अकाउंट. PL में आप जितना भी खर्चा दिखाते हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो भी खर्चा है, इफ इट इज पेड फॉर द प्रीमाइसेस which is used for your business profession, business और profession के लिए अगर आप वो premises use करते हैं, तो that will be allowed as expenditure deduction. वो आपका खर्चा allowable खर्चा है. बिल्डिंग इज यूज्ड टू बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ऑब्वियसली अगर आप बिल्डिंग को बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा. सपोज यू आर पार्टली यूजिंग द बिल्डिंग फॉर बिजनेस प्रोफेशन एंड पार्टली इट इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस, तो उतना प्रोपोर्शनेट खर्चा ही आपको अलाउ होगा जितना आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे कल वाला जो था, लेट आउट है, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ओनली दैट प्रोपोर्शनेट व्हिच इज लेट आउट विल बी फॉर लेट आउट एंड रेस्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. वैसे ही जितना पोर्शन आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं उतना ही पोर्शन आपको अलाउ होगा एज डिडक्शन. सेकेंड इज नोशनल रेंट. नोशनल रेंट मतलब शॉप. नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप है, शॉपकीपर अपना शॉप के लिए खुद को ही रेंट दे रहा है और दैट इज नॉट अलाउड कि आप अपना रेंट खुद को दें, वो अलाउड नहीं है. लेकिन सपोज पार्टनरशिप फंड में पार्टनर्स है and one of the partners premises is used for the business of that firm. फर्म के काम के लिए किसी एक पार्टनर का premises यूज हो रहा है, तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म इज पेइंग रेंट टू दैट पार्टनर. वो premises को यूज करने के लिए वो रेंट दे रहा है, वो रेंट अलाउ होगा बिकॉज दैट इज नॉट नोशनल. वो खुद को खुद नहीं दे रहा है, बट की पार्टनरशिप फर्म इज गिविंग टू पार्टनर्स, so that will be allowed as deduction. But some rent proprietor is paying to himself, that is not allowed. Current repair versus capital repair. Just now इसके पहले था कि current repair allow होगा, capital repairs are not allowed. In the same case, ये जो अगर आपका बिल्डिंग है या कुछ भी है, ये जो premises है, इसमें अगर आप कुछ repairs ऐसा करवाते हैं which is very normal, which does not result in a new asset
और एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ऐसा कुछ रिपेयर्स नहीं करवा रहे. सम लोकल नॉर्मल रिपेयर्स यू आर डूइंग which does not bring into existence a new asset. जैसे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, it is not bringing into existence a new asset, so that is not allowed. So इसलिए current repairs are allowed, capital repairs are not allowed. And one more thing, capital repairs चाहे वो tenant करवाए या landlord करवाए, कोई भी करवाए, this is not allowed. Capital expenditure यहाँ पे allow दोनों में से किसी को नहीं है. See, यहाँ पे क्या है, a repair, current repair मतलब a repair incurred to preserve and maintain the existing asset. उसमें कहीं थोड़ा बहुत खराब हो गया या डोर्स थोड़ा बहुत टूट गया है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक करने के लिए आप डोर्स ठीक करवा दिए, that is okay, but it should not bring into existence a new asset. Municipal taxes. Municipal taxes forms part of rates and taxes. तो ये जो म्यूनिसिपल टैक्स आप देते हैं कैश बेसिस पे डिडक्टेबल है. ना यू विल से वो तो हाउस प्रॉपर्टी में भी डिडक्टेबल था. हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्टेबल था वो रिलेटेड टू रेसिडेंस था, जिस घर में आप रह रहे थे उस घर से जो रेंट मिल रहा था उसके अगेंस्ट जो म्यूनिसिपल टैक्स दे रहे थे वो वहाँ अलाउ था. लेकिन अ हाउस इज यूज्ड फॉर बिजनेस तो भी वो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस आप देते हैं वो अंडर पीसीबीपी अलाउड होता है. So this was section 30. Section 30 में ये आपका है repairs and insurance, rent, rate, tax, repairs सब कुछ for building. Next है repairs and insurance for machinery, plant and furniture. Furniture, plant, machinery का अगर आप repairs and insurance करवाते हैं तो that is also allowed as deduction. Allowable खर्चा है because you are doing it for the purpose of business. इसमें भी सेम वही पॉइंट्स है, यूज ऑफ एसेट, इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. उसका भी करंट रिपेयर, कैपिटल रिपेयर, करंट रिपेयर अलाउ है, कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं है. रेंट फॉर फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी. रेंट अगर आपको आप अगर ये सब के लिए कोई रेंट दे रहे हैं, यू हैव टेकन प्लांट मशीनरी ऑन रेंट, तो वो रेंट आपका डेफिनेटली अलाउड अंडर पीसीबीपी, वो इनकम टैक्स अलाउड होता है. बिकॉज आप टिल उतना ही अलाउ करेगा जितना इट इज फॉर बिजनेस पर्पस. और प्लांट मशीनरी डेफिनेट कोई अपना घर का पर्पस के लिए तो खरीद के लाएगा, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, तो प्लांट एंड मशीनरी पे इट इज अलाउड. उसके बाद है सेक्शन 32. सेक्शन 32 इज डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन में the way you calculate it in your accounts, कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन कैसे होता है, आपके पास 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग का अलग अलग वैल्यू है, या 4 प्लांट है, मशीनरी है, व्हाटएवर, मोटर कार है, फर्नीचर है, कुछ भी है, सबका अलग अलग डेप्रिसिएशन निकल रहा है. बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 1 का जो वैल्यू है उसका डब्ल्यूडीवी उसके हिसाब से निकलेगा, बिल्डिंग 2 का जो वैल्यू है उसका जो डब्ल्यूडीवी है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलेगा. बट इनकम टैक्स एक्ट में वैसा नहीं होता. इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक कंसेप्ट है. ब्लॉक कंसेप्ट मींस a group of asset is considered as block. Suppose you have 5 buildings, तो नेचर ऑफ एसेट सेम है, सब बिल्डिंग है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी इनकम टैक्स में है कि किसका कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, तो वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम है. तो अपने उस पूरे बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, ब्लॉक. ये एक ब्लॉक है. वैसे ही फर्नीचर्स आपका, इफ यू आर हैविंग फर्नीचर्स मतलब ऑल वुडन फर्नीचर्स हैं, एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट सबका फर्नीचर का सेम रेट है. जितना भी फर्नीचर हम टेक इनटू अकाउंट दोज आर हैविंग सेम रेट, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन ब्लॉक. हम लोग यहाँ पे ब्लॉक का बात करते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर फर्नीचर. 10 बिल्डिंग है तो 10 बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है. 10 बिल्डिंग को इफ दोज आर ऑल नेचर ऑफ एसेट सेम है मतलब बिल्डिंग है, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट यूज के बेसिस में उसका रेट भी दिया हुआ है, अगर वो रेट सेम है तो वो पूरा बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी विल बी 1, मतलब डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक.
ब्लॉक का WDV बोला जाएगा, वो बिल्डिंग का WDV, एक एक बिल्डिंग का WDV नहीं बोलेंगे। So depreciation is calculated on block basis. Basically the assets are of two types, like tangible assets and intangible assets. बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब टैंजिबल होता है। इंटैंजिबल क्या होता है? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, ये सब जो है दीज आर इनटैंजिबल एसेट्स। तो जो टैंजिबल एसेट्स है इसका मतलब ये नहीं है कि टैंजिबल एसेट्स का एक ब्लॉक हो गया, नहीं, उसमें भी यू हैव डिफरेंट टैंजिबल एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, तो सब अपना अपना अलग अलग ब्लॉक है। नाउ फॉर प्रोवाइडिंग ब्लॉक एसेट मैम, हाँ, ब्लॉक एसेट फिर से समझा देंगे क्या? हाँ, ब्लॉक कोई एसेट नहीं है, ब्लॉक इज अ कंसेप्ट। ब्लॉक कंसेप्ट है। सपोज यू आर हैविंग बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, 3 बिल्डिंग है आपके पास। अगर आप कंपनी एक्ट में होते, अकाउंट्स में आपके पास 3 बिल्डिंग दिया जाता तो आप कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं? सपोज इसका वैल्यू है 10 लाख, इसका है 25 लाख और इसका है 35 लाख। आपको बोलता है 10% WDV में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करते हैं? 10 लाख पे 10% लगाते हैं, 25 लाख पे 10% लगता, 35 लाख पे 10% लगता। अलग अलग बिल्डिंग पे अलग अलग रेट्स लगा के आप इसका WDV निकालते हैं। तो दिस वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ योर एसेट। आप अपना बैलेंस शीट में 3 बिल्डिंग दिखाते हैं और बिल्डिंग का ये प्लस ये प्लस ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बिल्डिंग एज पर योर कंपनीज एक्ट या फिर एज पर योर अकाउंट्स। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3 को अलग नहीं पकड़ेगा। वो क्या करेगा? ये अगर आपका ओपनिंग WDV है इस साल का 10, 25 और 35, he will add in income tax, we will take block of building। अपने क्या लेंगे? ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। इसका WDV we will take 75 lakhs, टोटल 75 lakhs लेगा। अपना अलग अलग नहीं लेगा कि 10 लाख पे 10% निकाले, फिर 25 लाख पे 10% एंड 35 लाख पे 10%। नो, we will take, sorry, this will be 70 lakhs। ये टोटल का इसका टोटल 10 प्लस 25 प्लस 35, this will be 70 lakhs। So we will take the total is 70 lakhs। Suppose your rate is 10%, तो आप ये 10% इस 70 lakhs पे टोटल निकालेंगे, 7 लाख का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ये जो अपने पूरा बिल्डिंग को एक ब्लॉक मानते हैं। सो देयर आर नॉट 4 बिल्डिंग्स। इनकम टैक्स के लिए वहां पे 4 बिल्डिंग नहीं दिखता, इनकम टैक्स को वहां पे ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग दिखता है कि इतना बिल्डिंग है, उसका WDV, ओपनिंग WDV 70 लाख है, तो इस साल अपने 10% उस पर डेप्रिसिएशन देंगे। हमारा क्लोजिंग WDV इज 63 lakhs। We don't find out for single asset, एक asset का नहीं निकालते, ब्लॉक ऑफ asset का निकालते। तो इस ग्रुपिंग को, ये जो बिल्डिंग का एक ग्रुप बना दिया, फर्नीचर का एक ग्रुप बना दिया, इस ग्रुपिंग को भी से ब्लॉक। समझ में आया? अभी मान लीजिए मैम कि 3 एसेट में जब 10% करके डेप्रिसिएशन था, तो वो 30% हो जाएगा कि 10% ही डालेंगे? 10% ही रहेगा, 30% नहीं होगा, क्योंकि आपका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 10% है। अपने WDV को ऐड करेंगे, नॉट द रेट। रेट विल बी 10%, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10% का ही लगेगा, विल बी 10%। डेप्रिसिएशन का रेट सिंगल लेंगे, लेकिन बिल्डिंग का मतलब वैल्यू सब ऐड कर लेंगे। हाँ, WDV ऑफ ओपनिंग जो आपका इस साल का ओपनिंग WDV है वो पूरा ऐड कर देंगे। ये आपका टोटल ब्लॉक का वैल्यू हुआ, उस पे जो डेप्रिसिएशन रेट है 10% डेप्रिसिएशन वही लगेगा, डेप्रिसिएशन का रेट ऐड नहीं होगा।
डेप्रिसिएशन का रेट भी अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर तो यू नॉट ऐड द रेट्स ना। डेप्रिसिएशन का आपको बोला है बिल्डिंग पे 10% ही डेप्रिसिएशन लगेगा, आपका जितना ही बिल्डिंग हो आप उसका टोटल लेके उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। समझ में आया? जी मैम। ओके, नाउ हाउ कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन? ऐसा तो नहीं है कि मेरा मन किया डेप्रिसिएशन लेने का, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने का, आई विल डिडक्ट इट। नो, फर्स्ट इट शुड बी यूज्ड फॉर द बिजनेस। पहला कंडीशन क्या है कि आपको बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। एसेट must be used for the purpose of business in the previous year, लास्ट ईयर आपको यूज किया है। और सेकंड, एसएससी उसका ओनर होना पड़ेगा। एसएससी उस बिजनेस उस एसेट का ओनर होना पड़ेगा। बट यू विल सी उसमें नोट्स में पॉइंट्स है जहां लीगल ओनर नहीं होने से भी चलेगा। इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर और इफ यू आर अ लेसी, आप वो एसेट लीज पे दिए हैं एंड until you make the full payment of your lease, तब तक वो एसेट नहीं बनता आपका, तो आप still you are not the legal owner of that, लेकिन you can take the depreciation deduction, depreciation का claim आप कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है asset must be owned by the SSE और second condition है used for the purpose of business, you should use it for the purpose of business। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में कुछ पॉइंट्स है। एसएससी को बेनिफिशियल ओनर होने से ही होगा, वो रजिस्टर्ड ओनर या लीगल ओनर नहीं होने से भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज को ओनर। सपोज जॉइंट ओनरशिप में है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। जॉइंट ओनरशिप मेरा अगर किसी बिल्डिंग में आई हैव अनदर पार्टनर, उसका भी दोनों का पैसा लगा के अपने को बिल्डिंग खरीदे थे, तो पैसा कितना लगा था? अगर 50-50 पैसा लगाए थे तो डेप्रिसिएशन भी अपने 50-50 क्लेम करेंगे। अगर 60-40 पैसा लगाए थे तो डेप्रिसिएशन 60-40 क्लेम करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज, हायर परचेज पे आप कुछ है आपका इंस्टॉलमेंट अभी भी आप दे रहे हैं, तो जब तक आपका इंस्टॉलमेंट देना पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक यू डोंट बिकम द ओनर ऑफ दैट एसेट, लेकिन यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, आप उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। सेम विद लीज, लीज पे अगर कुछ लिया हुआ है, लीज पेमेंट्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा यू डोंट बिकम ओनर, तो आप अपना लीज पे जो लिया हुआ है एसेट, बट यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ दैट एसेट। These are the 4-5 conditions जहां आप legal owner नहीं हैं, still you can claim the deduction of depreciation, depreciation का deduction ले सकते हैं। And second point was that should be used in the previous year for business profession। अब use का दो तरीका है, एक होता है एक्टिव यूज, एक होता है पैसिव यूज। एक्टिव यूज मतलब आप उस एसेट को एक्टिवली अपना बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और passive use means you are no, the asset is ready to use but you have not used। पिछला साल अगर आप चाहते तो वो asset को you could have used but you have not used, it was ready to use, तो भी आप उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। दोनों केस में whether it is active use और passive use, दोनों यूज में आप उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, you can claim depreciation। Partly used for business profession, अब partly use किए हैं, you have not used the full amount, वो थोड़ा सा यूज किया है फॉर बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तो जितना यूज किया है बिजनेस प्रोफेशन के लिए उतना ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। जितना यूज किया है उतना ही क्लेम करेंगे, उससे ज्यादा यू कैन नॉट क्लेम। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू टेनेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। हाउस प्रॉपर्टी है जब आप लेट आउट कर रहे थे नॉट फॉर बिजनेस, नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो क्या हो रहा था उस हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे थे हम लोग। लेकिन अगर कोई सेम हाउस इज लेट आउट फॉर द बिजनेस पर्पस या फिर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, तब उस हाउस प्रॉपर्टी पे जो डेप्रिसिएशन बनता है वो डेप्रिसिएशन का भी अपने
क्लेम ले सकते हैं. So when it is for business purpose, you can take the claim of depreciation. But normal house property अगर rented है for residential purpose, तो वो आप अगर rent receive कर रहे हैं तो उसमें you cannot claim for that. You cannot claim depreciation for that house property. See, here it is written, method of computing depreciation as per income tax is entirely different from your accountancy method. Income tax act में assets are categorized into block of assets. हाँ, block मतलब assets, this I discussed already, या बाद में है. Block of assets मतलब group of assets of same nature होना पड़ेगा और same rate of depreciation charge होना पड़ेगा. Suppose आपके पास 10 ठो बिल्डिंग है, उसमें 5 बिल्डिंग में इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आप देखिए उसमें यूज वाइज दिया हुआ है कि अगर इस यूज में होता है तो ये रेट लगेगा. तो अगर आपका 5 बिल्डिंग पे 10% रेट लगता है और दूसरा 5 बिल्डिंग पे 15% रेट लगता है तो वो 2 ब्लॉक बनेगा. देन यू कैन नॉट मेक वन ब्लॉक. यू हैव टू मेक वन ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग विद 10% डेप्रिसिएशन और दूसरा 5 को लेके एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा विद 15%. तब पहला 5 का WDV आप पहला 5 में ही ऐड करेंगे. जैसे 10% वाला एसेट्स जो है उनका WDV एक साथ ऐड करके लिखना पड़ेगा और जो 15% वाला एसेट है उसका जो WDV है वो आपको अलग लिखना पड़ेगा. एंड देन यू कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. तो 2 ब्लॉक होगा उसमें. And depreciation will be on WDV method. Income tax में कभी भी straight line method follow नहीं होता है. एक एक्सेप्शन है आपका पावर यूनिट्स, जनरेशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर वाला केस में, जहां आप स्ट्रेट लाइन मेथड ले सकते हैं. बट फिर वहां पे सम बेनिफिट्स है जो आपको नहीं मिलेगा, व्हिच आई विल डिस्कस इसके बाद वाले टॉपिक है. बट इनकम टैक्स एक्ट में हमेशा WDV फॉलो होता है. यू हैव टू कैलकुलेट योर डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड at rates prescribed as per income tax. कंपनीज एक्ट अपना रेट अगर प्रेस्क्राइब कर रखा है तो वो रेट्स जब आप इनकम टैक्स में भर रहे हैं वो रेट्स नहीं लगेगा. इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का रेट्स लगेगा. ये देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट. सपोज यू आर हैविंग अ WDV. दिस इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन. इसमें बस एक एसेट नहीं होता, ब्लॉक होता है. सपोज आपका ओपनिंग WDV है 7 लाख रुपीस. इस साल आप उसमें कुछ और ऐड किए हैं तो वो ऐड जो किए हैं यू हैव टू ऐड इट. सपोज 2 लाख का मशीन यू हैव एडेड तो वो ऐड करके 9 लाख हुआ है. और उसके बाद इफ यू आर सोल्ड, इस साल अगर आप कुछ बेच भी दिया है इसमें से, सपोज 3 लाख का आप बेच भी दिए हैं तो 6 लाख. योर क्लोजिंग WDV कितना है? क्लोजिंग WDV इज 6 लाख. तो आप डेप्रिसिएशन इस 6 लाख पे कैलकुलेट करेंगे. दिस इज नॉर्मल. ये अकाउंट्स में भी ऐसे ही होता है. अकाउंट्स में भी आप जब डेप्रिसिएशन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं. जो आपका ओपनिंग बैलेंस रहता है उसमें व्हाट यू हैव परचेज वो ऐड हो जाता है, व्हाट यू हैव सोल्ड वो माइनस होके जो आपका बचता है फिगर उस पे यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. सो दिस इज सेम विद, ये कांसेप्ट सेम है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा. And one more thing, any asset which was acquired in previous year में वो asset आपको आप खरीदा था but you used it for less than 180 days, तो आपका जो rate है उसका half depreciation मिलेगा. Suppose 10% is the rate of depreciation on building. Taking that building you are purchasing on 1st December 2020. 1st December 2020 तो financial year 2021 में up to 31st March 21 you have used that asset for a period less than 180 days. क्योंकि आप क्या बोलते हैं दिसंबर में उसको खरीद के लाए उसके बाद से यूज कर रहे हैं तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च
you count it is less than 180 days, तो हम उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? फ्लैट 50%, मतलब 10% अगर रहेगा तो अपने 5% लेंगे। लेकिन हमारा अकाउंट्स में हम ऐसा अगर होता था तो कैसे करते थे? अकाउंट्स में अगर आपका एक बिल्डिंग 10 लाख रुपया का था एंड यू हैव यूज्ड इट फॉर 4 मंथ्स, तो 10% डेप्रिसिएशन लगता था फॉर 4 मंथ्स। दिस वे वी यूज टू कैलकुलेट। अगर आपका अकाउंट्स होता तो डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करते, लेकिन इनकम टैक्स में इफ यू हैव यूज्ड इट फॉर 4 मंथ्स तो ये वाला चीज नहीं है। यहाँ पे ये 10 लाख पे 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पे मंथ वाइज कुछ नहीं है, मंथ वाइज आपका डेप्रिसिएशन नहीं डिफर करता। यहाँ डिफर करता है या तो यू हैव यूज्ड इट मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज। अगर 180 डेज से ज्यादा यूज किए हैं तो आपका जो रेट है 10% वो लगेगा, फ्लैट 10%। एंड इफ यू हैव यूज्ड इट फॉर लेस देन 180 डेज, अगर 179 डेज भी यू हैव एडेड, यू हैव यूज्ड दैट एसेट, तो आपका 5% डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे फ्लैट 50% हो जाता है। सो दिस इज अ थिंग विच इज डिफरेंट विद अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप क्या करते हैं, 4 महीना अगर यूज करते तो 4/12 करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्लैट 50% हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन डेज, इसमें एक ही लिमिट है। दिस इज योर डेप्रिसिएशन चार्ज। देखो, बिल्डिंग्स पे 5% का डेप्रिसिएशन भी है, बिल्डिंग्स पे 10% का भी डेप्रिसिएशन है, 40% का भी डेप्रिसिएशन है। तो ये हम आपको बोल रहे थे यूज बेसिस पे डेप्रिसिएशन रेट्स दिया हुआ है इनकम टैक्स में। तो आपके पास 4 बिल्डिंग 5 रेट वाला 5% वाला है, 2 बिल्डिंग 10% वाला है, 10 बिल्डिंग 40% वाला है। तो बिल्डिंग्स में ऐसे करके कितना हुआ आपके पास? 4 बिल्डिंग इसका, 2 बिल्डिंग 6 बिल्डिंग एंड 10, तो टोटल 16 डिफरेंट बिल्डिंग्स। इनकम अकाउंट्स में क्या करते हैं, 16 डिफरेंट बिल्डिंग्स का और डब्ल्यूडीबी लेके बैठते हैं और उस पे हर एक बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है इक्वली, अलग अलग बिल्डिंग के लिए। लेकिन अकाउंट्स में टैक्स में 3 ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग बनेगा, एक ब्लॉक 5% वाला, एक ब्लॉक 10% वाला और एक ब्लॉक 40% वाला। तो यू हैव 3 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग। अब 5% होगा कि 10% होगा कि 40% होगा, आपको कैसे पता चलेगा? यूज बेसिस पे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, होटल्स, बोर्डिंग, ये सब छोड़ के जो नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वो 5% है। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री, ये सब पे 10% है। और अगर कोई बिल्डिंग विच इज अंडर टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है 40%। Now see plant machinery, furniture including electrical fittings सबका 10% है। प्लांट मशीनरी पे see कितना बाइफर्केशन है, 20, 30, 30%, 45%, 40%, यहाँ पे 40%, 15%, so many bifurcations you have. ये rates of depreciation you have to learn. Question में आपको rates दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। There is no guarantee कि हर बार question में rate देगा ही, नहीं दिया तो you have to calculate. So it's better to keep these rates in your mind. जनरली दे देता है, अगर टफ बनाना रहा उन लोग को और वो लोग अगर क्वेश्चन में रेट्स नहीं दिया तो यू हैव टू कैलकुलेट। सो इट्स बेटर ये रेट्स आप याद रखिए कि कौन सा पर्पस में कितना रेट यूज करना पड़ता है। दिस इज अ सम, इसमें अलग अलग डे पे फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर बेचा है। दिस इज अ कंबाइंड सम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और यहाँ पे रेट दे दिया है 10%। सी इन दिस सम दे हैव गिवन रेट। दिस इज अ सम फॉर डेप्रिसिएशन। ये सम आप कैलकुलेट करो एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन क्लास और ओवर फोन। Okay.
ये तो डेप्रिसिएशन हुआ। फिर एक कंसेप्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और आपको एडिशनल और 20% डेप्रिसिएशन और मिलेगा। वो 20% क्यों मिलेगा? वो मिलेगा जब आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं फॉर स्पेसिफिक बिजनेस। वो सब बिजनेस के लिए नहीं है, दैट इज फॉर स्पेसिफिक बिजनेस। सी, additional depreciation is applicable on all SSEs engaged in business of manufacture or production। मतलब आप अगर ट्रेडिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन है, तो ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ट्रेडिंग का काम करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके लिए नहीं है। ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और इन द बिजनेस, या तो कोई भी चीज, एनी आर्टिकल और थिंग, कुछ भी अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, उन लोगों को मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। या फिर दोज हु आर इनटू द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर सप्लाई, पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उस बिजनेस में जो है वो लोग को मिलता है। सो देयर आर टू पीपल जिसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, एक जो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करता है, दूसरा जो इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। लेकिन उसमें भी कंडीशंस है, उसमें भी कंडीशन है। मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन सब जो कर रहे हैं उसको नहीं मिलता। यू हैव टू फुलफिल दीज कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशन? पहला कंडीशन है एसएससी मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग व्हिच मैन्युफैक्चर्स दिस वी स्टडीड। मैन्युफैक्चर होना चाहिए, प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, या फिर ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकेंड क्या है? एसएससी acquired and installed after 31st March 2005। 31st March 2005 के बाद वो acquire किया या इंस्टॉल किया है some plant और machinery। कोई भी प्लांट और मशीनरी अगर 2005 के बाद वो acquire किया है, इंस्टॉल किया है, तो उसको मिलेगा। एक्सेप्ट ये सब नहीं मिलेगा। इफ यू हैव दीज थिंग्स तब नहीं मिलेगा, और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलेगा। अगर कोई फर्नीचर लेके आया है या कुछ और लेके आया है, वैसा एसेट को नहीं मिलेगा, बिल्डिंग को नहीं मिलेगा, ओनली प्लांट एंड मशीनरी। एक्सेप्ट स्टिल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर आप 2005 मार्च 2005 के बाद शिप या एयरक्राफ्ट एक्वायर किए हैं, तो यू विल नॉट गेट एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन शिप्स और एयरक्राफ्ट। Plant machinery which was used either within or outside India by any person before such installation। पहले वो इंडिया के बाहर था, वो उसके बाद उसको क्या किया, वहां से उठा के ले आया इंडिया में उसका डेप्रिसिएशन एंजॉय करने के लिए। बट इट इज नॉट अलाउड, उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इफ इट वाज यूज्ड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर आप उसको यूज कर रहे थे, तो वो यहाँ अगर आप मार्च 2005 के बाद लाए हैं, स्टिल यू विल नॉट गेट डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है उसका जो रेट्स है दैट विल बी कैलकुलेटेड। दिस एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ऑफ एक्स्ट्रा 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। Any plant or machinery installed in office premises or residential accommodation। ऑफिस में अगर कुछ प्लांट एंड मशीनरी या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में अगर आप कुछ लाए हैं, गेस्ट हाउस, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ऑफिस अप्लायंसेस नहीं आता है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं आता है। एनी प्लांट और मशीनरी विच इज अलाउड फॉर 100% डिडक्शन। कोई प्लांट और मशीनरी सपोज ऐसा है जिसका 100% डेप्रिसिएशन मिलता है, मतलब आप अगर वो प्लांट मशीनरी खरीदे तो जितना आपको पैसा लगा है दैट इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन। ऐसा अगर कोई प्लांट मशीनरी आप खरीद के लाते हैं तो फिर यू हैव ऑलरेडी एंजॉयड द होल अमाउंट एज डिडक्शन। और एडिशनल डेप्रिसिएशन वो देगा किस अमाउंट पे? कुछ अमाउंट है ही नहीं उसके पास देने के लिए, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐसे भी वो यू कैन नॉट कंप्यूट। Rate of depreciation is 20% of actual cost of such plant and machinery। Keep it in mind, plant and machinery पे ही सिर्फ मिलता है, not on building furniture, ये सब पे नहीं है।
ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे जितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वहां पे 4-5 रेट जो था वो प्लस 20% और मिलता है। ओके एंड यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है। इफ यू हैव अक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर और अगर आप 180 डेज से कम यूज किए हैं तो 20% का फ्लैट 50% 10% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, लेकिन बाकी का बचा हुआ 10% आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे मिलेगा। ऐसे नहीं तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्या होता था, अपने नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्या करते थे कि 10% का हिसाब से जितना डेप्रिसिएशन हुआ वो टोटल माइनस कर देते थे, लेकिन फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 20% चार्ज कर रहे हैं आप, एंड इफ यू हैव यूज्ड इट फॉर लेस देन 180 डेज देन 20% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन हुआ उसका आधा हाफ इस साल मिलेगा और हाफ आप नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं। ऐसा अदर डेप्रिसिएशन में नहीं होता। अदर डेप्रिसिएशन में आपको वापस और WDV पे टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें हाफ यू कैन टेक इन दिस फाइनेंशियल ईयर और हाफ आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, बचा हुआ डेप्रिसिएशन। ओके, स्पेशल रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। सपोज इन सम नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज, ऐसा एरिया है जो बैकवर्ड है, वहां पे कोई बिजनेस करना नहीं चाहता बिकॉज देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वहां पे कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, इसीलिए टू एनकरेज कि लोग वहां उस बैकवर्ड एरिया में भी जाके बिजनेस करें so that the economy of that area grows and that area develops, तो उसके लिए to make it more क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग, जैसे आपको डेप्रिसिएशन इसीलिए गवर्नमेंट ज्यादा दे रहा है 35%, जो आपका ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है वो तो है ही, प्लस इतना भी जो 20% था एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में जाके करेंगे वो काम तो आपको 35% डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसका मतलब क्या, ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलने का दैट ग्रीड और उस लालच में जो बिजनेसमैन है दे विल गो एंड डू बिजनेस इन दैट नोटिफाइड एरिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा मिल रहा है वो आप अलाउ करेंगे अपना इनकम से तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम आएगा बिकॉज आपका इनकम घट जाएगा व्हेन आप ज्यादा डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंस उसमें से माइनस करेंगे। so that businessman को encourage करने के लिए it is a type of benefit given by government कि आप you go and do business in backward areas, अगर आप backward areas में business करेंगे तो हम आपको 20% की जगह 35% depreciation देंगे, and those backward areas cannot be chosen by businessman कि हमको ये एरिया बैकवर्ड लगता है हम यहाँ जाके बिजनेस करेंगे, नो, दैट शुड बी नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज। जो बैकवर्ड एरिया इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट वही एरियाज आपका आएगा। SSC सेट्स अप एन अंडरटेकिंग, तो ये 35% डेप्रिसिएशन पाने के लिए विच आर द कंडीशंस यू हैव टू सैटिस्फाई। SSC सेट अप एन अंडरटेकिंग फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन होना पड़ेगा। Now such undertaking should be set up on or after 1st April 2015। ये जो प्रोविजन है एडिशनल डेप्रिसिएशन का इट वाज नॉट देयर, पहले ये डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं था, ये बाद में आया है कंसेप्ट, इसीलिए 2015 सो इट्स अ वेरी न्यू कंसेप्ट। 2015 के बाद जो बिजनेसेस स्टार्ट किया है इन बैकवर्ड एरियाज ये बेनिफिट सिर्फ उसी को है, अगर कोई पुराना बिजनेस है उस बैकवर्ड एरिया में तो उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। 2015 के बाद जो ये स्टार्ट किया है बिजनेस करना उन लोगों को सिर्फ ये बेनिफिट है। Such undertaking should set up in notified backward area। Notified backward area कहाँ का, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट का जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज है वहीं जाके आपको बिजनेस करना है टू अवेल दिस डेप्रिसिएशन। 35% अगर आप चाहिए आपको तो आपको ये प्लेसेस में जाके काम करना पड़ेगा। And SSC acquires or installs any new machinery or plant, obviously plant and machinery होना पड़ेगा because ये depreciation सिर्फ plant and machinery पे ही लगता है।
एंड वो इंस्टॉलेशन और एक्विजिशन कब होना चाहिए प्लांट ऑफ मशीनरी का 1/4/2015 से 1/4/2020, 5 साल दिया गया था 15 से 20। तो इसका मतलब ये टाइम लिमिटेड भी था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जब जिसका मन हुआ हाँ वहां जाके बिजनेस करते हैं हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, नहीं, एक टाइम पीरियड था ताकि डेवलपमेंट ऑफ दोज बैकवर्ड एरियाज जल्दी हो सके। इफ यू गिव थ्रू आउट द टाइम तो पीपल विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है, व्हेन वी विल फील लाइक वी विल गो। लेकिन व्हेन यू नो कि आपके पास सिर्फ 5 ही साल है ये बेनिफिट अवेल करने का, तो पीपल विल डू फास्ट। बिजनेसमैन जो है वो लोग फास्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे वो बैकवर्ड एरियाज में। उससे क्या होगा, विद इन अ टाइम दो बैकवर्ड एरियाज विल डेवलप, इसीलिए ओनली 5 इयर्स गैप दिया गया था। नाउ इसका मतलब अब ये चीज अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये इंस्टॉलेशन 1/4/20 तक ही था, नाउ इट इज नॉट देयर। Where if the asset is acquired and put to use, वापस वही 180 days, 180 days से कम अगर आप यूज कर रहे हैं तो it will be 50% of 35, that is 17.5% पे आपको डेप्रिसिएशन रेट लगाना है। डेप्रिसिएशन ये तो ब्लॉक पे है बोल दिया। दिस इज अ प्रोविजन, सी यहाँ पे अब ये इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 यू सी इलस्ट्रेशन 3 में क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है which commenced the manufacturing activity with effect from 1st September 2020 has acquired the following asset during the previous year। कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट कब किया है, 1st September 2020 and has acquired the following assets during the previous year। तो वन थिंग इज यहाँ पे 1st September 2020 था, तो 1st September, और डोंट गेट कंफ्यूज कि वो तो 1/4/2020 तक ही था। 1/4/2020 वाला जो प्रोविजन था वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज के लिए था। एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी भी मिलता है, वो था बिजनेस नोटिफाइड एरियाज में। नोटिफाइड एरियाज में अगर आपको बिजनेस करना है तो वो उसका लिमिट था 1/4/2020, बट इसका मतलब ये नहीं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन अब मिलना खत्म हो गया। एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर 1 अप्रैल 2015 के बाद कहीं भी काम करता है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। So don't get confused with that. That was for notified backward areas. तो इस सम में आपका क्या है, 1st September 2020 has acquired the following assets. So these are the list of assets. यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग का दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी किसी का ही नहीं दिया है, मतलब सब नया एक्विजिशन है। इस फाइनेंशियल ईयर में कोई ओपनिंग डब्ल्यूडीपी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग का 50 लाख रुपया। सी प्लांट मशीनरी में दिया हुआ है मशीनरी ए बी सी डी ई एफ, और फिर दिया हुआ है मोटर कार एयर कंडीशनर। तो इसमें एक तो आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन सब पे कैलकुलेट होगा, लेकिन जो आपका क्या बोलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ प्लांट मशीनरी पे ही होगा, मतलब ए टू ई तक ही होगा, मशीनरी ए बी सी डी ई पे ही होगा, बिकॉज ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और एफ पे नहीं होगा क्योंकि वो सेकेंड हैंड है, आपका एक्विजिशन ओरिजिनल होना चाहिए। okay. So this was the question। इसका solution देखिए, रेट 10%, 15%, 15% प्लांट एंड मशीनरी का रेट लिया है। वहाँ पे बहुत सारा प्लांट एंड मशीनरी का रेट्स था, दे हैव टेकन 15% अज्यूमिंग इसका यूज। फिफ्टीन परसेंट प्लांट बिल्डिंग था इन जनरल, मतलब अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है रिगार्डिंग प्लांट एंड बिल्डिंग तो जनरली प्लांट एंड बिल्डिंग पे 15% डेप्रिसिएशन लगता है।
तो जनरल रेट दे हैव टेकन 15%. WDV nil, कुछ नहीं दिया हुआ है WDV. Okay, purchase during the year 50 lakhs and 32 lakhs. See, plant and machinery 32 lakhs और building 50 lakhs. कैसे किया है ये आपका बिल्डिंग का 50 lakhs ये तो दे ही दिया. प्लांट एंड मशीनरी में डिवीजन है, सब इस चीज प्लांट मशीनरी है, बट यू हैव टू डिवाइड इट इन डिफरेंट ब्लॉक्स. पहला ब्लॉक क्या होगा, उसमें मशीनरी A, B, C, D, E एंड F रहेगा, ये एक ब्लॉक. दूसरा ब्लॉक क्या है, मोटर कार, एंड तीसरा इज एयर कंडीशनर. ये क्योंकि नेचर सेम नहीं है, ब्लॉक बनने के लिए क्या कंडीशन था, नेचर सेम होना पड़ेगा. नेचर सेम होने से जैसे इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी A to F we kept in one block. उसके बाद मोटर कार एक ब्लॉक और एयर कंडीशनर एक ब्लॉक. ओके, कर दिए, ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दिए. अब परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो आपको टोटल ऑफ मशीनरी कितना है, मशीनरी आपका टोटल कितना, 2 + 5 7, 17 lakhs. फिर आपका 4 lakhs, 21, 3 and 5. 26 lakh. यहाँ पे व्हाट दे हैव डन, ये टोटल यहाँ पे पूरा एक साथ ले लिया है आपका प्लांट एंड मशीनरी को. मतलब ये 2 लाख से लेके 1 लाख तक मशीनरी, मोटर कार, एयर कंडीशनर सब एक साथ ले लिया है. 32 lakhs दे हैव शोन. बट इफ यू वांट, आप अलग से 5 लाख को मोटर कार को अलग और एयर कंडीशनर को अलग दिखा सकते हैं 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे दे हैव गिवन इन नोट कि ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ मशीनरी A to F, मोटर कार एंड एयर कंडीशनर. सो प्लांट एंड मशीनरी का ये लोग एक ब्लॉक बना दिया है. एंड दे हैव चार्ज्ड डेप्रिसिएशन आल्सो इन सेम रेट, 15% सेम रेट पे सब कुछ पे चार्ज कर दिया है, मोटर कार पे, एयर कंडीशनर पे, सबको वैसे. बट अगर आपका क्वेश्चन में अलग रेट रहेगा तो आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते, टोटल नहीं कर सकते. आपको मोटर कार का अलग दिखाना पड़ेगा, एयर कंडीशनर का अलग दिखाना पड़ेगा इफ द रेट्स आर डिफरेंट. हियर नथिंग इज मेंशन्ड, ऑल आर अंडर द ग्रुप ऑफ प्लांट मशीनरी. तो वो 32 lakhs एक साथ दिखा दिया है. सेल प्रोसीड्स नथिंग. So what is the depreciation, WDV, closing WDV आपका मतलब closing WDV depreciation के बाद निकलता है, बट यहाँ वाला WDV I am telling 50 lakhs, 32 lakhs. उसके बाद इसके ऊपर depreciation, बिल्डिंग पे additional depreciation नहीं आएगा, तो 50 lakhs पे वो 10% depreciation कैलकुलेट किया है. 50 lakhs पे 10% depreciation, क्योंकि बिल्डिंग पे depreciation अलग नहीं आएगा. लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करना है, बिकॉज यू हैव टू गिव एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और दूसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन. तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, नाउ सी, मशीनरी ए वाज एक्वायर्ड ऑन 5/6/55, मतलब 180 डेज से ज्यादा. मशीनरी बी 7/6, 180 डेज से ज्यादा. मशीनरी सी भी एक्वायर किया है 30 अगस्त, 180 डेज से ज्यादा. डी और ई, डी में इट इज 19, जो 180 डेज से ज्यादा है. बट मशीनरी ई 1 जनवरी को एक्वायर किया है, विच इज नॉट मोर देन 180 डेज. एफ इज ऑल्सो एक्वायर्ड ऑन 11th January, which is not used for 180 days. Same ways motor car and air conditioner not used for more than 180 days. तो machinery E, F, motor car और air conditioner, इस पे अपने आधा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे. मतलब 15% के हिसाब से ये लोग कैलकुलेट किया 15%, so we will take only 7.5%. इसका मतलब जो आपका मशीनरी ए है 2 लाख रुपीज प्लस 5 लाख 7 प्लस 10, ये 17 लाख रुपया पे आपका 15% डेप्रिसिएशन लगेगा. एंड जो नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट आप बोलेंगे यहाँ पे है 19, योर डेट ऑफ एक्विजिशन इज 19, और अगर 19 से आप कैलकुलेट करेंगे मार्च का 180 डेज विल बी देयर, लेकिन इन योर वर्किंग दे हैव डन ओनली 17 लाख को 15%, मतलब दिस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख, यही सिर्फ 17 लाख को वो लोग 15% में लिया है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 और ये 15 लाख को वो लोग ये 15 लाख को वो लोग हाफ कर दिया है। सो वाई दिस मशीनरी डी 4 लाख रुपया, इस 4 लाख को वो लोग क्यों 15% में नहीं लाया, उसको हाफ क्यों किया? तो इट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 सितंबर, स्टिल वो 180 डेज होता है, तभी भी वो हाफ क्यों किया? एनीवन कैन से? वो उसको हाफ इसीलिए किया बिकॉज इट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 सितंबर, बट आप इसका पुट टू यूज डेट देखिए 31 अक्टूबर, वो सितंबर अक्टूबर 2 महीना उसको यूज ही नहीं किया, तो 31 अक्टूबर को वो उसको यूज किया है। अगर आप यूज का डेट से देखेंगे तो इट इज नॉट 180 डेज, वो 180 डेज से कम है। दैट्स व्हाई वो वाला पोर्शन को भी 15% के हिसाब से नहीं कर सकते, 7.5 के हिसाब से करेंगे, बिकॉज इट वाज यूज्ड फॉर एन अमाउंट फॉर अ डे लेस देन 180 डेज। तो इसीलिए ये वर्किंग 15 लाख का 15% इंटू हाफ किया है। ओके, आज का यहीं तक रहने देते हैं। दैट इज स्टिल एडिशनल डेप्रिसिएशन। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विथ न्यू concept. Please practice these sums, and I have also given free sums on house property. Please also try those sums. Thank you. मैडम हाँ, मैडम हाउस प्रॉपर्टी का जो सम्स दिया था ना वो डाउट लग रहा है, उसको नहीं हो पाया। ओके, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना क्या डाउट है। ठीक है मैम, हो गया। थैंक यू। प्लीज ट्राई द सम्स। थैंक यू।